Hello everyone, welcome to Eclon. Today we will discuss monopoly. Monopoly market structure. We will try to understand this concept with a few real life examples. I'll share my screen. If any one of you have any doubts, you could write in the chat box and I'll get back to you after the lecture gets over. All right. Hello. Hi Yogita, am I audible to you? All right, so let's start with the monopoly. So monopoly, as the word suggests, when only one seller is a king, then we say that's a monopoly. एक ही seller है और वही जो है market में king है, उसी के product जो है सबसे ज़्यादा market में demanded है, then we say that it's a monopoly. So monopoly is more or less like a मैं हूँ खलनायक because he or that the one seller is he or she is the one who owns the market, right? So if we start with the basic definitions of the monopoly, then it's a situation where there's a one seller of the product, right? Single seller. But that's just a definition, that what definition states that it's a single seller. But it's not compulsory that कि एक ही सेलर होना चाहिए जो मार्केट में वो चीज एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करे, दैट्स नॉट नेसेसरी. बट अगर कोई कमोडिटी है और उस कमोडिटी की सबसे ज्यादा डिमांड जो है किसी एक ही सेलर से की जाती है और उसका जो मार्केट शेयर है मोर देन 70% भी है, तो हम कह सकते हैं दैट्स अ मोनोपोली. आप बात करें मैगी की, इंस्टेंट नूडल्स बहुत सारे हैं आपके पास, यू हैव यिप्पी एंड देयर इज मेनी अदर्स, राइट? बट स्टिल जब भी इंस्टेंट नूडल्स की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में हमारे तो मैगी आता है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट नूडल्स के और कोई ब्रांड नहीं है. सिंगल सेलर वाली डेफिनेशन तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रही है, बट स्टिल when the instant noodle things comes up in our mind, the Maggi is the first brand that pops up in our head, right? So monopoly is a situation in which there is a single seller of a product, right? So for example, if there's only one single firm dealing in the sale of a cooking gas in a particular town, so we say that's a monopoly. This is the bookish definition we are talking about. So monopoly is a market situation in which there's only one producer of a commodity with no close substitutes. This is very important. जरूरी नहीं है कि कोई एक ही सेलर हो, बट अगर कोई ऐसा प्रोड्यूसर है जो ऐसी कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है कि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हम कह सकते हैं दैट इट्स अ मोनोपोली, राइट? मैगी की हम बात करें, इंस्टेंट नूडल्स की बात करें, बहुत से अदर ब्रांड्स हैं, यिप्पी है, सनफीस्ट और कोई और भी बहुत अदर ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स, जेनरिक ब्रांड्स हैं, बट स्टिल जो टेस्ट मैगी ऑफर कर रही है, क्लोज सब्स्टिट्यूट भी मैगी का हमें तो नहीं मिलता. इवन जब मैगी का बीच में जब लीगल इशू हुआ था, इवन आफ्टर दैट द ब्रांड वाज नॉट अफेक्टेड. एक बार जब मैटर सॉर्ट आउट हो गया, सारी इश्यू सॉल्व हो गए, मैगी का जो डिमांड है वापस वहीं पे उतनी इंक्रीज हो गई, राइट? सो वी कुड से दैट मोनोपोली इज एक मार्केट सिचुएशन जिसमें प्रोड्यूसर जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस करे उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट? So that is about the introduction to the monopoly, right? If we talk about the features of the same, so one seller and a large number of buyers. यहाँ पे सेलर सिर्फ एक ही है, राजा सिर्फ एक ही है, बायर्स बहुत सारे हैं, right? The buyers of the commodity, there are many of buyers, but there's one seller. If you take the example, the famous one and the most common one, that is Indian Railways, IRCTC, one seller, right? Indian Railways की सर्विस प्रोवाइड करने वाली सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, that is IRCTC. So that is a one
one seller and a large number of buyers. The buyers are large number, right? Every one of us, we need to travel. हमें कोई ना कोई रीजन से ट्रैवल करना है, right? So buyers बहुत सारे हैं, डिमांड जो है प्रोडक्ट की, सर्विस की बहुत ज्यादा है, बट सेलर, ये सर्विस प्रोवाइड करने वाली सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज IRCTC, राइट? सो मोनोपोली इज एन आल्सो एन इंडस्ट्री. मोनोपोली को इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है? नाउ व्हाट इज इंडस्ट्री? बहुत सी फर्म्स, अगर हम सब फर्म्स को एक साथ ला दें तो हम उसको इंडस्ट्री कहेंगे, राइट? बहुत सी फर्म्स, कंपनीज हैं जो फूड प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रही हैं, राइट? सो चिप्स फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पोटैटो चिप्स की बात करें, बहुत से ब्रांड्स हैं जो पोटैटो चिप्स आपको ऑफर कर रहे हैं, बट अगर हम उन सबको इकट्ठा कर दें तो हम कह सकते हैं दैट कम्स अंडर फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री, राइट? सो मोनोपोली को इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में अगर एक ही सेलर है जो मार्केट में अपनी कमोडिटी से जो है राज कर रहा है, सो दैट इज, वी कुड से दैट मोनोपोली इज आल्सो एन इंडस्ट्री, इट्स जस्ट नॉट अ फर्म, क्योंकि वो एक ही है, राइट? सो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म. सो मोनोपोली का एक अनदर फीचर ये है कि दैट इज एन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ द न्यू फर्म. न्यू फर्म्स, अगर कोई भी न्यू फर्म्स एंटर करना चाहती है मार्केट में, प्रोडक्ट जो है ऑफर करना चाहती है, अपनी सर्विस ऑफर करना चाहती है, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, लीगल रेस्ट्रिक्शंस है. अगर कोई भी कंपनी है वो चाहती है कि मैं रेल सर्विसेज प्रोवाइड करूं, दैट इज नॉट लीगली अलाउड टू डू सो, राइट? So there's a restrictions on the entry of the new firm. It's not that easy कि आज आपने सोच लिया मुझे बिजनेस करना है, मैं सोच रही हूँ कि रेल सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, but that not easy कि आपने सोचा और वो काम हो गया. So there's a legal restrictions. So वो restrictions हैं, कुछ formalities हैं. Excuse me. So that is about the same. The fourth point, no close substitutes. This is very important. कोई, अगर आप इंडियन रेलवेज की बात करें, there is other means of transport. बहुत से means of transport हैं. There is a buses. You could travel through buses. You could travel through your own car, right? You could travel through airways, waterways. बहुत से ways हैं. But railways, if you talk about जो railways का जो एक comfort है, जो satisfaction आपको एक railways के through मिलता है, that is the another level. So उसका कोई close substitute नहीं है, right? If we रेलवेज को अगर आप रोडवेज से कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ प्राइस, फीचर्स, क्वालिटी, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, राइट? सो देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अदर देन दैट प्राइस मेकर. मोनोपोली फर्म्स जो है प्राइस मेकर है, दैट मींस दे डिसाइड ऑन द प्राइस. व्हाई? एक ही फर्म है जो ये प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में ऑफर कर रही है, उसकी बहुत डिमांड है. सो जो भी प्राइस है वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर फर्म का सप्लाई कितना है, कि अगर वो एक ही फर्म है, वही सप्लाई कर रही है उस पर्टिकुलर कमोडिटी को, तो उसी की सप्लाई पे डिपेंड करेगा कि प्राइस जो है उस प्रोडक्ट का कितना होगा. सो यहाँ पे जो फर्म है दैट इज अ प्राइस मेकर एंड नॉट प्राइस टेकर, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस. सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, लेट्स see if any one of you have any doubt. Okay. All right. So let's move forward. Causes of origin of monopoly. Monopoly arise कैसे होती है? बहुत सी अलग-अलग सिचुएशन है कि जिसमें monopoly एक फर्म जो है क्रिएट होती है. So we would understand the causes of origin of monopoly. All right, so the first one is the patent rights for the products or a production process give a legal monopoly rights to firm. All right, so patents का क्या मतलब होता है? कोई भी फर्म है, कोई इनोवेशन लेके आई है, राइट? उसने कोई एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला जो अभी तक मार्केट में नहीं था, राइट? वो एक इनोवेशन के साथ आई. अब वो चाहती है कि ये आविष्कार उसका है, तो वो फर्म चाहती है कि ऑलराइट कि ये जो इनोवेशन है कोई दूसरा उसे यूज ना कर सके, राइट? बिकॉज ऑफ कोर्स वो इनोवेशन उसका है, मेहनत उसकी है. सो वो एक लीगल पेटेंट्स के लिए, लीगल राइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि जिससे आपको राइट मिल जाता है कि ये डिजाइन, ये इनोवेशन आपका है. और अगर कोई दूसरी फर्म, कोई दूसरा इंसान इस प्रोडक्ट को, इस इनोवेशन को यूज करना चाहता है, तो दे हैव टू पे यू. या तो उनको आपको पे करना होगा, या फिर आपकी परमिशन, प्रायर परमिशन के बिना आपका इनोवेशन यूज नहीं हो सकता. उस पे एक्सक्लूसिव राइट आपका है. सो दैट इज द पेटेंट राइट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? सो अगर हम गूगल की बात करें, सर्च इंजन पे, अगर इफ वी यूज सर्च इंजन, राइट, एवरी वन ऑफ
ask Google frequently on our daily basis, right? So कुछ भी अगर हम गूगल कर तो एक टर्म ही बन गया है कि लेट्स गूगल इट. सो लुक एट द पोजिशनिंग ऑफ दैट ब्रांड कि गूगल का जो इंटरफेस है वो इतना यूजर फ्रेंडली है. सो उनके जो टेक्नोलॉजी जो भी वो यूज करते हैं, जो भी एल्गोरिथम्स वो यूज करें, उसका भी पेटेंट उनके पास होता है, राइट? दैट मीन्स वो जो टेक्नोलॉजी है, जो भी प्रोसेस वो यूज कर रहे हैं, वो कोई और फर्म यूज नहीं कर सकती. उस पे जो एक्सक्लूसिव राइट है वो गूगल का है. सो इस तरीके से मोनोपोली बनाई जा सकती है. दैट इज अ पेटेंट राइट्स फॉर द प्रोडक्ट्स or a production process give a legal monopoly rights to firms. So that is the first one. Government policies such as granting license or imposing foreign trade restrictions. कई बार ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है इस तरीके के कुछ रेस्ट्रिक्शंस लाती है, इस तरीके की कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है कि मोनोपोली अपने आप ही क्रिएट हो जाती है, नेचुरल मोनोपोली हो जाती है. सो इफ वी टॉक अबाउट कोल इंडिया, कोल इंडिया एक ऐसी फर्म है कि 80% ऑफ मार्केट शेयर उसके पास है, कोल इंडिया के पास. एक्सक्यूज मी. सो वहां पे क्या हुआ था कि 1973 में, इन 1973 व्हाट हैपेंड कि जो कोल इंडिया है उसका नेशनलाइजेशन हो गया था. सो नेशनलाइजेशन में ये था कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लेके आई कि जो कोल माइनिंग है उसका एक्सक्लूसिव राइट जो है पब्लिक सेक्टर, दैट मींस गवर्नमेंट के पास रहेगा. प्राइवेट सेक्टर्स आर नॉट अलाउड. प्राइवेट सेक्टर्स अगर कोल माइनिंग करना चाहते हैं, इस बिजनेस में जुड़ना चाहते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू डू सो. सो नेशनलाइजेशन जब 1973 में हुआ तो इससे ये हो गया कि कोल इंडिया के पास ये मोनोपोली राइट आ गया, और इसलिए स्टार्टिंग से अभी जो है कोल इंडिया की मोनोपोली है, जो कि बाद में अभी प्राइवेट सेक्टर्स को भी इस इंडस्ट्री में जो है परमिशन दे दी गई है. बट स्टिल जो पहले से एक ब्रांड बन गया कोल इंडिया की, वो अभी लगातार ही है. और हम कह सकते हैं कि 80% ऑफ द मार्केट शेयर कोल इंडिया के पास है. व्हाई? क्योंकि उस टाइम जब ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आई थी दैट नेशनलाइजेशन की, सिर्फ एक्सक्यूज मी, कि गवर्नमेंट के पास ही ये कंट्रोल रहेगा कोल माइनिंग का. सो नेचुरल मोनोपोली क्रिएट हो गई. ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ सम स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल्स. कोई फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं, उनके पास ऐसी कुछ केमिकल्स हैं, कुछ ऐसी रॉ मटेरियल्स जिससे वो मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं, राइट? सो वो जो एक्सेस है मे बी उन्हीं के पास हो, मे बी उन्हीं के पास ऐसे कुछ सप्लायर्स हो जिनसे उनको रॉ मटेरियल्स मिलता हो. सो ड्यू टू दैट ऑल्सो की मोनोपोली क्रिएट हो सकती है. सो ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ सम स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल, दैट इज द अनदर वे टू क्रिएट मोनोपोली. एक्सक्लूसिव नॉलेज ऑफ अ टेक्नोलॉजी बाय द फर्म. कोई एक फर्म है, एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी सिर्फ उसी के पास है और उसी को उसका पूरा ज्ञान है, then also monopoly would be created. If we talk about the Apple iPhones, Apple gadgets, right? अगर हम प्रीमियम फोन्स की बात करें, जेनरिक या नॉर्मल ब्रांड्स की बात करें, बहुत से फोन्स हैं, राइट? बट अगर हम प्रीमियम फोन्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एप्पल आईफोन आता है, एप्पल गैजेट्स आते हैं, राइट? Why? Because they have exclusive technology. उनके पास वैसे exclusive technology है जो उनको monopoly की तरफ लेके जाता है. So there's an exclusive knowledge of a technology of the firm also created monopoly. There are also cases where monopoly is established for preventing entry of the new firm. कई बार क्या होता है कि कुछ firms ऐसी एक situation, artificial situation create करती हैं जिससे monopoly create होती है. वो अपना प्रोडक्ट इतने कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, इतने कम प्राइस पे प्रोड्यूस करती है, सेल करती है कि न्यू एंट्रेंट्स, न्यू फर्म्स एंटर करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते. सो दैट इज आल्सो द केस वेयर द मोनोपोली कुड बी एस्टैब्लिश्ड, राइट? सो वी हैव अ बिग, जैसे वॉलमार्ट है. सो वॉलमार्ट को जो है इंडिया में अलाउ नहीं किया गया था. व्हाई? बिकॉज उसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन चेन इतना बड़ा है, इतना मास प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, that the cost, जो average cost है प्रोडक्ट का, that is very cheap, वो बहुत ही कम है, right? So due to that जो हमारे इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं वो उससे कॉम्पिट नहीं कर पाएंगे, that could hurt इंडियन प्रोड्यूसर्स. इसलिए वो जो है एक इश्यू अभी तक बना हुआ है, right? So monopoly establish की जाती है for preventing entry of the new firm. New firms easily enter नहीं कर सकती हैं. So क्योंकि जो existing producers हैं वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को इतने कम प्राइस पे, बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस पे बेचते हैं कि जिससे न्यू एंट्रेंट्स ये इजीली ना कर सके, राइट? सीक्रेट मेथड ऑफ अ प्रोडक्शन एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स में गिव मोनोपोली पावर. सो
मैगी की अगर हम टेस्ट मेकर की बात करें, सो और भी जो अदर इंस्टेंट नूडल्स के ब्रांड्स हैं वो भी टेस्ट मेकर दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? जो मैगी का टेस्ट है, देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट मैगी दैट not other competitors could cope, we could say, imitate easily, right? So कुछ secret method of a production है, specialized skills भी monopoly power दे सकते हैं. If we talk about Coke, could you believe that Coke की जो रेसिपी उसका पेटेंट नहीं है? Now why it is so? Because अगर if Coke apply for the patent, what happens? They have to reveal the secret of the recipe after 20 years. 20 साल के बाद उनको बताना होगा कि how they produce Coke, right? What is the secret recipe of that Coke? So due to that, अभी तक Coke और Pepsi, they don't have a patent because वो 20 साल बाद भी अपनी secret recipe बताना नहीं चाहते. And आप खुद ही जानते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स के मार्केट में Coke and Pepsi are the market leader, right? So if you agree with the same. Hi Shubham Kumar. Am I audible to you? Hello. Hello. Yes, ma'am, you audible. Hi Shubham. So if you have any doubt, you could ask after the lecture gets over. All right. So we are discussing the causes of origin of a monopoly. कि monopoly किस तरीके से arise होती है, कौन से situation है जिसमें monopoly arise हो सकती है, right? So secret method of production की बात करें कि कोक और पेप्सी अभी भी पेटेंटेड नहीं है, क्योंकि उनकी जो सीक्रेट रेसिपी है वो किसी दो इंसान को ही, वो भी एक कॉन्फिडेंशियल चीज है, किसी दो एक एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन्हीं को ये रेसिपी पता है. एंड दे हैवंट अप्लाइड फॉर पेटेंट, क्योंकि पेटेंट का रूल है कि अगर आप पेटेंट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 20 साल के बाद अपनी रेसिपी रिवील करनी है. एंड कोक एंड पेप्सी, दे डोंट वांट टू do the same, so they have a monopoly power, right? Other than that, the last one, that whenever a huge amount of money is required for investment, which for others it might not be possible, then such a company becomes a monopoly naturally. कई बार कैसा होता है, कुछ इंडस्ट्री, कुछ फर्म्स ऐसी होती है कि उसमें इन्वेस्टमेंट इतना भारी भरकम चाहिए दैट कि अदर फर्म्स सोच भी नहीं सकते उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए. अगर हम बात करें इंडियन रेलवेज की, ट्रेन्स, रेलवे ट्रैक्स, इन सबको बनाने के लिए इट रिक्वायर्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, राइट? वो एक छोटा मोटा प्रोड्यूसर, छोटे मोटे फर्म्स उसको इजीली नहीं कर सकते. सो ऑफ कोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, इसलिए भी एक नेचुरल मोनोपोली क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अदर फर्म्स इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, जो एक उनके पोटेंशियल के बाहर की चीज है, राइट? So this is all about the causes of origin of a monopoly, and then we would discuss the nature of demand curve that is faced by the monopoly, right? So monopoly situation की अगर हम बात करें, फर्म और इंडस्ट्री में मोनोपोली में फर्क नहीं होता, क्योंकि एक ही फर्म है जो मार्केट में केटर कर रही है, मार्केट में जो है कंज्यूमर्स को केटर कर रही है, राइट? सो एक ही फर्म है. और इंडस्ट्री की बात करें तो जब सभी फर्म्स मिल जाती हैं तो एक इंडस्ट्री बनती है, राइट? सो यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री के बीच में कोई फर्क नहीं है. मोनोपोली, द फर्स्ट वन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री. अकॉर्डिंगली, अंडर मोनोपोली सिचुएशन, firm's demand curve also constitutes industry demand curve. Excuse me. यहाँ पे मोनोपोली सिचुएशन में जो फर्म की डिमांड है, इंडस्ट्री की डिमांड सेम है, क्योंकि दोनों एक ही हैं. So here you could see that the average revenue curve is a downward sloping, right? This is the price. Average revenue is nothing but the price, the revenue which a consumer gets for the per unit of the product. That is the average revenue. So with the decrease in the price, there is an increase in the quantity. यहाँ पे जो है AR curve जो है, it slopes downward. Why it slopes downward? Because of course, if the prices are high, the demand would be low. ज्यादा प्राइस पे जो है कम डिमांड होगी, अगर वहीं पे प्राइस कम कर दी जाती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. जो लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक प्रिंसिपल है वो यहाँ पे अप्लाई करता है. तो डिमांड कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट इज आल्सो एवरेज रेवेन्यू कर्व, स्लोप्स डाउनवर्ड. तो अगर मोनोपोलिस्ट हाई प्राइस फिक्स करता है तो डिमांड कम होगी. ऑन द अदर हैंड, इफ द मोनोपोलिस्ट फिक्सेस लो प्राइस, द डिमांड विल expand under monopoly, right? So here this is the average revenue curve, which is a downward sloping. Why? Due to the law of demand, right?
and this is the marginal revenue curve. That means the extra revenue, अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल कर रहे हैं किसी कमोडिटी का, सो आपको कितना जो है रेवेन्यू मिलेगा, दैट इज द मार्जिनल रेवेन्यू. यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है. नाउ व्हाई द मार्जिनल रेवेन्यू इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज अगर कंज्यूमर if a producer wants to sell more, अगर प्रोड्यूसर चाहता है कि उसकी जो प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा हो, सो उसको जो भी प्राइस है वो कम करना होगा, राइट? अगर वो फर्स्ट यूनिट अगर वो 10 रुपीज में सेल कर रहा है, तो सेकंड यूनिट वो 8 रुपए पे सेल करेगा, तभी जो है डिमांड इंक्रीज होनी है, राइट? because that is the how law of demand applies. ये कंज्यूमर का बिहेवियर है, कंज्यूमर सस्ता खरीदना चाहता है, राइट? So this is the marginal revenue curve, this is the average revenue curve, right? So in monopoly, the average revenue and marginal revenue curves are separate from one another and both slopes downward, right? All right, let's move to the equilibrium. Now, what is this condition of equilibrium? Equilibrium, equal balance जब situation होती है, हम कहते हैं equilibrium. Equilibrium वो condition है कि जहाँ पे सभी खुश हैं, that is equilibrium. So अगर हम बात करें short run equilibrium of the monopoly firm की, so short run वो period of time होता है कि जिसमें आप फिक्स फैक्टर्स को कोई चेंज नहीं कर सकते. एक साल के अंदर का जो टाइम है हम उसको शॉर्ट रन कहते हैं. तो हम ये कह रहे हैं कि मोनोपोली फर्म शॉर्ट रन में कब इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, तो दो बेसिक कंडीशंस हैं ऑफ द इक्विलिब्रियम. फर्स्ट इज द मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. जो भी एडिशनल कॉस्ट प्रोड्यूसर स्पेंड कर रहा है एक कमोडिटी को बनाने के लिए, और जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू उस कमोडिटी को बेच के उसको मिल रही है, दैट शुड बी इक्वल. सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू. एंड द सेकंड वन, marginal cost curve cuts marginal revenue curve from below. That means जहां पे ये दोनों intersect कर रहे हैं, उस पॉइंट के बाद जो marginal cost है वो rising होना चाहिए, decreasing नहीं होना चाहिए. So here you could see this is the short run marginal cost, right? So यहाँ पे वो पहले कुछ decrease हो रहा है. Why? Because due to the efficiency, कि अगर आप स्टार्टिंग में जब प्रोडक्शन कर रहे हैं, सब कुछ स्पेशलाइज्ड है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, कॉस्ट कम हो रही है. सो दिस इज द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट. तो यहाँ पे कॉस्ट कम हो रही है प्रोडक्शन के साथ, बट इस पॉइंट के बाद अब कॉस्ट बढ़ रही है. व्हाई? बिकॉज शॉर्ट रन में आप फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते. एक मशीनरी है, एक मशीनरी पे आप जो है वर्कर्स ऐड किए जा रहे हैं, और अब वो जो मशीनरी है वो ओवर यूज्ड हो चुकी है, प्रोडक्टिविटी मशीनरी की खत्म हो चुकी है, राइट? एक स्पेस है, एक मशीनरी है, उसमें आपने एक वर्कर लाए, 2 वर्कर लाए, 3 वर्कर लाए, और आप ऐड किए जा रहे हैं. वो स्पेस इतनी कंजस्टेड हो गई कि जो प्रोडक्टिविटी है वर्कर की वो ही खत्म हो गई. दे आर नॉट कंफर्टेबल इन प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी. सो वहां पे ड्यू टू दैट जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है एक पॉइंट के बाद शॉर्ट रन में इंक्रीज होगी, राइट? सो here you could say, so the first, अगर हम इक्विलिब्रियम की भी बात करें तो डिफरेंट कंडीशंस है. फर्स्ट वन इज अ शॉर्ट रन मोनोपोली इक्विलिब्रियम विद अ पॉजिटिव प्रॉफिट. यहाँ पे प्रॉफिट जो है मोनोपोली फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम कंडीशन ये पॉइंट है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? दैट मींस दिस इज द क्वांटिटी, दिस वुड बी द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा. Now, at this point, this is the short run average cost. ये average cost है और average revenue इस पे जो price है हमारा इतना है. That means producer जो है monopolist firm जो है price इतना charge कर रहा है और उसका जो cost है per unit cost वो इतना है. That means this would be nothing but the profit, right? So this is the short run monopoly equilibrium with a positive profit. So यहाँ पे consumer जो producer है, monopolist firm जो है वो profit earn कर रही है. Now this is the situation of normal profit. Normal profit, that means monopolist firm यहाँ पे सिर्फ अपनी cost cover कर पा रही है, profit का situation नहीं है, but सिर्फ cost cover हो रही है. Excuse me. So here, this is our short run marginal cost, average total cost, this is marginal revenue, this is average revenue. तो ये जो point है, this is the point of equilibrium where the marginal revenue and the marginal cost is equal. So that means this unit of output should be produced. इस unit पे price इतना है,
और हमारी जो कॉस्ट है वो भी इतनी है. दैट मीन्स एट दिस पॉइंट द एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू. मतलब जो प्राइस है वो सिर्फ टोटल कॉस्ट को कवर कर रही है. सो दैट इज नथिंग बट द नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है, राइट? बिकॉज यहाँ पे कोई एडिशनल गेन नहीं हो रहा, बट हाँ जितना आपने खर्चा था एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वो आप कवर कर चुके. सो दैट इज द अनदर वन. सो इफ अ मोनोपोलिस्ट फर्म produces new commodity and all right, and attempts to change the taste pattern of the consumers through advertising campaigns etc., then the firm may operate at a normal profit. जरूरी नहीं है कि मोनोपोली फर्म है तो वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएगी, जरूरी नहीं है. व्हाई? बिकॉज अगर मोनोपोली फर्म कोई ऐसा नया प्रोडक्ट लेके आती है, नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट पसंद ही आए. नो मैटर वो नो मैटर कि एक ही फर्म है, एक ही सेलर है, बट अगर प्रोडक्ट इतना इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, सो देन इट माइट हैपन कि जो मोनोपोली फर्म है वो प्रॉफिट अर्न ना करे, राइट? सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट अ मोनोपोली फर्म ऑलवेज मेक्स गेन. ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. So we have, this is now, there is a situation of a losses too. Excuse me. So here the short run equilibrium with the losses under monopoly. यहाँ पे जो फर्म है वो लॉस कवर कर रही है. दैट मीन्स फर्म का जो प्राइस है या जो भी जिस प्राइस पे फर्म बेच रही है प्रोडक्ट, वो प्राइस इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी है, उसको भी कवर किया जा सके, राइट? सो हियर व्हाट हैपन, दिस इज द मार्जिनल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट इक्वल. ये इक्विलिब्रियम आउटपुट हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट हो गया. इस पॉइंट पे the average revenue, that means the price is here, this is the price, but इस पॉइंट पे जो एवरेज कॉस्ट है वो हमारी इतनी है. this is the average total cost, this is the equilibrium level of output at where the marginal revenue and the marginal cost intersect. इस लेवल पे this is the average revenue, that means this is the price of the product, and this is nothing but the कॉस्ट, एक कमोडिटी को, एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट. सो दैट मींस यहाँ तो प्राइस जो है, प्राइस इज लेस देन द एवरेज टोटल कॉस्ट, राइट? सो प्राइस हियर इज लेस देन द एवरेज टोटल कॉस्ट. So due to that, this area is nothing but the losses which is incurred by the monopoly firm, right? Other than that, now the last one, that is a long run equilibrium. Long run एक वो period of time है कि जिसमें फर्म जो भी है फिक्स फैक्टर्स भी इंक्रीज कर सकती है. फर्म को लग रहा है, कंपनी को लग रहा है कि प्रोडक्ट की जो है काफी डिमांड है मार्केट में, ऑलराइट, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीनरीज खरीद लेते हैं, न्यू स्पेस, न्यू ऑफ कोर्स वी शुड बाय न्यू फिजिकल स्पेस आल्सो कि जहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटी हो सके, राइट? सो दैट इज, इफ यू टॉक अबाउट द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में भी सेम सिचुएशन अप्लाई करती है, वेयर द मार्जिनल कॉस्ट is equals to marginal revenue, or marginal revenue, that marginal revenue curve should intersect at that point कि जिसके बाद marginal cost curve should be rising. That is the two conditions for the equilibrium, right? So this is a long run marginal cost, right? This is long run average cost. This is the point of equilibrium where the marginal revenue is equals to the average revenue. इस level पे, at this level of output, this is the price, right? And this is the cost. So यहाँ पे जो price है is more than the long run average cost of the commodity. So here this portion would be nothing but the profit which is earned by the monopolist firm. All right, so I hope this much for today. So I hope I made myself clear. If any one of you have any doubt, you could ask me, you could write in the chat box, or you could unmute yourself and ask the question.
If any one of you have any doubt, you could raise your question. You could unmute yourself. All right, so I hope I made myself clear. So thank you for joining the session. Okay, thank you, Shubham Kumar. Thank you so much for joining the session.